Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online lecture series on electronic devices and circuits. This is Muhammad Uwais, your course instructor. Welcome back, students. I hope you had a great time on this Eid with your family and friends. Let's start our topic, which is MOSFETs. So, in our previous lectures, we discussed the basics of MOSFET. We know how to operate a MOSFET, and we know the different regions in which MOSFET operates. For instance, the triode region and the saturation region. Uh, and after knowing all this, we solved an example in our last lecture. Today we shall solve another example and discuss some more effects. So students, this is the ID-VDS characteristic curve of an NMOS. ठीक है, ये हम पहले discuss कर चुके हैं, and we know that there are different regions. This region is called the triode region, and after a certain point, the current actually it doesn't increase further. We say the current, the MOSFET is saturated, and in saturation region, our current remains constant. Which current? It's the drain current. Remember, in MOSFET, the drain and source currents are the same, and there is no gate current at all. Okay, so gate current is zero. So this is a quick summary. This slide is basically the review of previous lectures. This is our triode region, and the condition was that VDS should be less than VGS minus VT, or VDS should be less than the VDS saturation. And what is VDS saturation? VDS saturation is given by this value, VGS minus VT, or it can be written as V overdrive. So अगर मैं आपसे कहूँ कि VDS saturation, the point at which saturation region starts is given by V overdrive, then it will be totally fine. Okay, क्योंकि VGS minus VT is nothing but your overdrive voltage. So the starting point of saturation region is called the pinch off point. This was also discussed in our previous lecture. So this is my pinch off point, and at pinch off point, my VDS saturation, or simply VDS, is equal to V overdrive. So this relation we will be using again and again in our upcoming lectures. So you must know about this region and about this point in particular. Okay, the pinch off. So to the left of pinch off, the region is the triode region, and to the right is its saturation region. So we say VDS is greater than equal to VGS minus VT. So the equal to point actually refers to the pinch off, because even at pinch off we assume or we believe that the drain current is constant. ठीक है, and for all this to happen, the first condition is that VGS needs to be greater than VT. ठीक है, क्योंकि if VGS is less than VT, the channel cannot be formed. So in order for the channel to be formed, VGS has to be at least equal to VT. And then this was the summary for triode region. For triode region, the equation of current is given by this relationship, Kn dash W over L. And now this point, or this constant Kn dash W over L can also be given in another name. So because this is also a constant, so instead of Kn dash W or W over L, we can simply write down as Kn. ठीक है, तो at times आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और at times कुछ जगहों पे हम ऐसे simply Kn से represent कर रहे होंगे इस पूरी term को. ठीक है students, I hope this is clear. Okay, now in this equation, there is another important point. We said that if VDS is very small, referring to this point at the start of triode region, the beginning, if VDS is very small, like in 300, 200 millivolts, then this term VDS square will also be even smaller. Again, you divide it by 1 or 2, then it's again decreasing. So this term can simply be ignored if your VGS is equal to, if VDS is very small. Okay, only then the only term will be this term. Okay, the first term which you can see. So what about saturation region? In saturation region, the drain current is independent of VDS, as you can see here. इस कर्व में भी आप देख सकते हैं कि आप VDS को बढ़ाते जा रहे हैं, you are increasing VDS, but the drain current is constant theoretically. Practically, this drain current varies, which we shall discuss in our today's lecture. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने आईडी वीडीएस कर्व को देखा. अब यहाँ पे हम आईडी वीडीएस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को थोड़ा सा डिफरेंटली देखेंगे, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने सिर्फ वीडीएस के इफेक्ट को देखा था, व्हाट हैपेंस इफ यू इंक्रीज वीडीएस. अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम साथ साथ
VGS को भी इंक्रीज करेंगे. So we know that for different VGS the curves will be different. It's exactly similar to what we discussed in BJT जब हम different family of curves देख रहे थे. तो अब हमारा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट हमारे पास इंक्रीज होगा, और जब करंट इंक्रीज होगा तो वी विल हैव डिफरेंट curves for different values of VGS and that will be called the family of curves जो आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, have a look, ये आपके पास different curves नजर आ रहे हैं. So for instance this is my curve 1. This is for the given value of VGS. VGS is equal to VT plus 0.5 and ये curve कहाँ से आ रहे हैं? It is coming from this circuit which you can see here. ठीक है, so VGS is this is VGS which we have applied. This can be varied, okay, and this is your VDS. So we know what happens if we start increasing VDS. So you can check for any curve and then you will see what happens when VDS increases. So initially the current is increasing and after some point the current becomes constant and that point is called the pinch off point. And if you further increase VDS, there is no effect on the drain current because the drain current is not independent of VDS, again only theoretically. So ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम करने ये जा रहे हैं कि ये जो VGS है हम इस VGS की वैल्यू को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो we will have different values, different curves, and when we have different curves we will have different values of my drain current for saturation region. For instance for this curve this is the value of drain current, ठीक है, 0.5 ठीक है milliampere, and for this curve the value is like somewhere 1.2 ठीक है or 1.1, so just an approximation. And for this curve this is like the value of drain current in saturation region is 2 milliampere. ठीक है, so ये हमारे पास कर्व कैसे आए? व्हेन वी इंक्रीज VGS, बिकॉज वी नो कि जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं हमारे पास क्या होता है, चैनल की जो डेप्थ है वो आपके पास बेहतर होती जाती है, चैनल की कैपेसिटी बढ़ती है. ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. तो वी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स. So now we also know what will be the effect of increasing VGS. Since we already know what is the effect of VDS, this is now a more detailed investigation of NMOS ID-VDS characteristic curve. Now please remember here the MOSFET will be operating in saturation region when you want to use it as an amplifier. तो जब saturation region में आप इसे use करेंगे तो basically आप इसे as an amplifier के तौर पे use करते हैं. And if you want to use it as a switch, it is used in a triode region and the cutoff region. So what is the cutoff region, students? Cutoff region actually refers to this region when there is no drain current. और वो drain current कब zero होगा? आई होप ये आपको मालूम हो. देखिए ड्रेन करंट हमारे पास तब जीरो होगा when the value of VGS is less than VT. Why? Because at that point there is no channel has been formed and essentially there is no current flow. So we say the channel or the MOSFET is cut off. ठीक है जी. Now have a look at this curve. ये सेम वही कर्व है, उसको मैंने यहाँ थोड़ा सा enlarge कर दिया ताकि आप देख सकें. और ये देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VGS के लिए आपको डिफरेंट कर्व मिल रहे हैं. रिमेंबर दिस VTN, दिस इज फॉर एन NMOS चैनल. so VTN इज कांस्टेंट. लेट्स से दिस इज 1 वोल्ट फॉर इंस्टेंस. तो हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज VTN प्लस V ओवर ड्राइव 1. तो बेसिकली हम VGS को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास करंट बढ़ता जा रहा है. और आप यहाँ देख सकते हैं सैचुरेशन करंट की बात करें, हाफ केन डैश W ओवर L V ओवर ड्राइव 1 स्क्वायर. ठीक है, V ओवर ड्राइव 1 इस वक्त इसकी वैल्यू कम है. जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं आपके पास क्या इफेक्ट होता जा रहा है, करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है. सो दिस इज V ओवर ड्राइव 2 स्क्वायर एंड V ओवर ड्राइव 3 स्क्वायर एंड सिमिलर. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हिच आई वाज रेफरिंग टू इन माय डिस्कशन ऑन द प्रीवियस स्लाइड. सो VGS इज लेस देन VTN, देयरफॉर वी से इट इज कट ऑफ. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स समराइज आवर डिस्कशन ऑन NMOS. जो हमने NMOS के ऊपर डिस्कशन किया है उसको एक क्विकली समराइज कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये आपके पास देखिए एक NMOS आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर NMOS. ठीक है, एरो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज एन NMOS. we have applied some VGS and we have this VDS, so we can vary the value of VDS, and this is the curve which we are gonna get. So this is triode region and this is my saturation region. At pinch off you can see this is V over drive. This means at pinch off VDS is equal to V over drive, यानी कि VDS is equal to VGS minus VT. ठीक है जी, ओके. एंड व्हाट इज दिस, ये स्लोप कहां से आ रहा है, GDS is equal to 1 over RDS.
दिस इज के एन डैश डब्ल्यू और एल वी और ड्राइव। ये रिलेशन हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली ट्रायोड रीजन के अंदर है कि व्हेन मॉसफेट इज यूज्ड एज अ रेजिस्टर। तो जो हमने पिछली लेक्चर के अंदर एग्जांपल 5.1 की थी उसके अंदर हमें ये रिलेशन ड्राइव किया था, ठीक है। सो दिस इज ओनली वैलिड व्हेन VDS इज वेरी स्मॉल, not across the entire triode region but only when VDS is very small. Okay, we know that if VGS is less than the threshold voltage, there will be no current. I'm sorry. And the transistor will be set to be in cutoff mode. Cutoff mode का मतलब क्या है जी? करंट फ्लो नहीं कर रहा है, so ID is equal to 0. तो पहली शर्त क्या हुई हमारे पास? Remember हम हमेशा ये हमें इंश्योर करना है कि the first condition is that VGS has to be greater than the threshold voltage. So we say that VGS is equal to VTN plus VO drive. अब अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है तो इट डिपेंड्स कि अब आपके पास आप किस रीजन के अंदर है, वेदर यू आर इन ट्रायोड रीजन और यू आर इन सैचुरेशन रीजन, और इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस मोड में है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉसफेट विल बी डिफाइंड बाय द रीजन, ठीक है। आप ट्रायोड रीजन में है, आप सैचुरेशन रीजन के अंदर है। तो देख लेते हैं ट्रायोड रीजन में हमारे पास क्या होता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ VDS is less than VO drive। एक कंडीशन ये होती है जो हमने यहाँ पढ़ी थी, VDS is less than VO drive, और आप इस कंडीशन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। So VGD is greater than VTN। So आप चाहे तो in terms of VGD लिख सकते हैं, आप चाहे तो in terms of VDS लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि दोनों रिलेशन एक ही पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये VGD को आप किस ये रिलेशन कहाँ से निकाल सकते हैं? सिंपली बाय VGD को आप लिख दीजिए VGS माइनस VDS, ठीक है। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस रिलेशनशिप। सो बोथ आर एग्जैक्टली द सेम रिलेशनशिप। बस ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स ये हो जाती है कि कभी आप ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा देते हैं तो आपकी कंडीशन बिल्कुल इनवैलिड हो जाती है। उसका बस आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो चाहे आप ये कंडीशन यूज करें चाहे आप ये कंडीशन यूज करें, दिस इज फॉर ट्रायोड रीजन एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे अगेन यही बात है कि इफ द VDS इज वेरी स्मॉल then this term can be neglected and you can find out the value of the resistance जो आपको यहाँ लिखी हुई RDS which will be VDS upon ID and equal to 1 upon Kn dash W over L VGS minus VT, ठीक है। Okay, what about saturation region? In saturation region the condition is that VGD should be less than equal to VTN। हमने equal to की condition भी use की है स्टूडेंट्स। equal to की condition कौन सी होती है हमारे पास? this is my पिंच ऑफ पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पिंच ऑफ के ऊपर भी हम कहते हैं कि अब करंट हमारे पास कांस्टेंट हो चुका है। सो पिंच ऑफ इज बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ द सैचुरेशन रीजन। ओके, और चाहे तो आप इसे इन टर्म्स ऑफ VDS लिख लें, VDS ग्रेटर देन VO ड्राइव, एंड द इक्वेशन ऑफ करंट इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप एंड यू कैन सी दैट ID इज इंडिपेंडेंट ऑफ VDS। अगेन रिमेंबर दिस इज जस्ट a theoretical understanding, practically ID depends on VDS। चलिए जी, लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल नाउ, ठीक है। पिछली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट, जिसमें समरी आपको प्रोवाइड की हुई थी। ये आपको पता होने चाहिए तमाम रिलेशनशिप, ठीक है। सो let's have a look at this example. We have an NMOS transistor fabricated on 0.18 micrometer process with L equals to 0.18 micrometer। ये क्या रिप्रेजेंट करे? चैनल की लेंथ है, और चैनल की विड्थ कितनी है जी? 2 micrometer। The process technology is specified to have C oxide is equal to 8.6 and the value is given to you, ठीक है, of other parameters as well. So mu n भी given है आपको and VTN is also given to you। अच्छा जी, what we have to do, we have to find out the value of VGS। In part A, it says find VGS and VDS that result in the MOSFET operating at the edge of saturation with ID equals to 100 microampere। So students, which point is this? The edge of saturation region। I hope you know the answer to this question, ठीक है। So the answer to this question is that point is actually referring to pinch off point, ठीक है। The edge of saturation is the pinch off point and we say that ID is equal to 100 microampere। So हमें मालूम है कि हमारे पास MOSFET is in saturation region, ठीक है। So VGS और VDS निकालना है तो हमें saturation की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और इसमें इक्वेशन में हमारे पास K and dash होता है। तो let's find out the parameters which need to be found out first before finding out these parameters। So we know that K and dash is equal to mu n C naught x। You just simply put in the values and you get your answer, ठीक है। Okay, now
अगेन ये हमने एक और अपनी तरफ से एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है एज पर सेडर स्मिथ कन्वेंशन। तो हमने कहा के एन इज इक्वल टू के एन डैश डब्ल्यू और एल। आपकी मर्जी, आप इसको के एन का नाम दे या ना दे, टोटली अप टू यू। इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक और कांस्टेंट निकाल लिया, ठीक है। So here we are, students. We know that our MOSFET is operating in saturation region. How do we know? कैसे मालूम है हमें? क्योंकि it was given in the question that MOSFET is operating at the edge of saturation. Edge of saturation is also included in saturation. और equation क्या होती है हमारे पास? Half Kn dash W over L VGS minus VT whole square. अब आप सोच रहे होंगे Kn dash कहाँ गया? तो बेसिकली Kn dash W over L की जगह हमने क्या लिख दिया? This is equal to Kn, ठीक है। And what is this V over drive? This is nothing but VGS minus VT whole square. Remember, we have to find out the value of VGS as well. So now, do we have the parameters? I think we have. We know the value of ID and we know the value of Kn. So from this equation, we can find out the value of the overdrive voltage. So let's plug in the values. Once you plug in the values, you will see that overdrive comes out to be equal to 0.22. स्टूडेंट्स अगेन, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि जब आप वीओवर ड्राइव को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपके पास दो आंसर आ रहे होंगे, एक प्लस 0.22 और दूसरा माइनस 0.22। क्यों? क्योंकि जब आप अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर प्लस माइनस आ रहा होता है। बट फॉर एन एनमॉस वीओवर ड्राइव इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो इट विल बी 0.22 क्योंकि वीओवर ड्राइव नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर एन एनमॉस। व्हाई? बिकॉज दिस इज इक्वल टू, दिस वीओवर ड्राइव इज इक्वल टू नथिंग बट VGS minus VT, ठीक है। So now in order for VO drive to be negative, this would mean that VGS has to be less than VT, तभी आपके पास VO drive negative होगा ना। और अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि NMOS is cut off, ठीक है, क्योंकि VGS is less than VT। तो पहली शर्त ही हमारे पास ये है कि VGS is greater than VT, therefore negative value of VO drive will not be considered and instead we will only take the पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमने पिछले एग्जांपल में भी किया था, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। ओके, नाउ इफ वी नो द वैल्यू ऑफ V over drive, we also know the value of VGS minus VT. So from this we can find out the value of VGS, which will be nothing but V over drive plus the threshold voltage, ठीक है। By simply putting in the value you will be able to find out the value, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ VDS। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VDS। अब VDS की वैल्यू कहां से निकालें? हमें ये गिवन है कि वी आर ऑपरेटिंग एट द एज ऑफ सैचुरेशन। सो एज ऑफ सैचुरेशन कौन सा पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट? इट इज पिंच ऑफ पॉइंट, एंड एट पिंच ऑफ पॉइंट VDS इज इक्वल टू V over drive, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ आंसर ऑलरेडी है। सो देयरफॉर वी विल से that VDS is equal to V over drive equal to 0.22. Remember, this is not always the case that VDS is equal to V over drive. ये सिर्फ कहाँ पे होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? ओनली एट द एज ऑफ सैचुरेशन, एट पिंच ऑफ पॉइंट, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ये इक्वल टू की कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। So now you see we have now the value of VDS and we also know VDS minimum for saturation region and also the value of our VGS. ये पार्ट ए में हमसे पूछा गया था। Let's move on to part B. So in part B, we have to find the value of VDS that results in ID is equal to 50 microampere. So अब हमसे ये कहा गया कि ID की वैल्यू कितनी हो गई है जी? 50 हो गई। पहले कितनी थी? 100 माइक्रोएम्पेयर। तो we have to find out the value of VDS. अब ID की वैल्यू हमारे पास कब कम हो सकती है? स्टूडेंट्स प्लीज हैव अ लुक हियर, ठीक है। Unfortunately, I do not have my touch pen with me. In fact, my actual laptop is not working, so I will try to use mouse and explain it to you. ठीक है, देखिए हमारे पास लेट सपोज जो हमारे पास करंट है वो 100 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है। इनफैक्ट वो है 100। सो दिस वाज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेट सपोज नो लेट दिस पॉइंट बी 100 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, दिस इज 100 माइक्रो एम्पेयर। अब हमसे कहा गया है कि आईडी की वैल्यू कितनी हो गई है? द वैल्यू ऑफ आईडी इज नाउ 50 माइक्रो एम्पेयर। अब
आईडी की वैल्यू 50 कब हो सकती है? आईडी की वैल्यू देखिए, सैचुरेशन रीजन मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेट्स जस्ट अज्यूम दैट दिस इज योर सैचुरेशन पॉइंट। अब आपके पास आईडी की वैल्यू जो है 50 कब हो सकती है? या तो आप ट्रायोड में चले जाए, यहाँ पे आ जाए फॉर इंस्टेंस, या फिर दूसरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स ये हो सकती है कि आपके पास VGS की वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। सो वी नो कि अगर VGS की वैल्यू लेट्स सपोज हमने चेंज कर दी, तो अब मेरे पास ये यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। So let this be like this, and if this is the case, then maybe this is the value of 50 microampere, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस मीन्स कि आईडी की वैल्यू चेंज होने के दो तरीके हैं, या तो VGS कम हो जाए या हम VDS को कम कर दें। सो अगर अगर ये के कंडीशन होती है कि हमें गिवन होता कि VGS कैन आल्सो बी चेंज, तो हम नहीं बता सकते थे कि हम इस वक्त किस मोड में। लेकिन यहाँ पे सवाल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सेड दैट VGS इज केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो सिनेरियो हम देख रहे थे, ये वाला सिनेरियो, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज VGS इज कांस्टेंट एंड वी आर ऑन द सेम कर्व, ठीक है। सो अगर अब 100 माइक्रो एम्पेयर है और अब 50 हो रहा है, सो उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। वो क्या पॉसिबिलिटी है? दैट वी आर इन ट्रायोड रीजन, ठीक है। सो मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपको इस्टेब्लिश कर सकूं कि नाउ वी आर इन ट्रायोड रीजन। सो नाउ दैट वी नो दैट वी आर इन ट्रायोड रीजन, लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू फिगर आउट कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके, अगेन ये वही बात है जो मैं आपको बता चुके हैं कि मॉसफेट इस वक्त किस रीजन के अंदर है। इट इज इन ट्रायोड रीजन। अल्फाज में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ यहीं से समझाता तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी होती समझने में, इस वजह से मैंने कर्व के जरिए भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इट सेज दैट VGS is kept constant at 0.72 volt and ID reduced from the value obtained at the edge of saturation। चूंकि VGS kept constant है 0.72 के ऊपर, इसका मतलब ये है कि MOSFET is in triode region। So here we are in our triode region and now we have all the values, ठीक है। We know the value of V over drive। इसको पुट कीजिए इक्वेशन के अंदर एंड देन यू विल हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, VDS। सो व्हेन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू विल हैव टू आंसर। वन इज दिस 0.06 वोल्ट एंड द अदर वैल्यू इज 0.39 वोल्ट्स। अब ये आपको देखना है कि आपके पास कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, VDS की वैल्यू व्हेन यू वर इन सैचुरेशन रीजन, तो क्या वैल्यू आ रही थी वहां पे? इट वाज 0.22 वोल्ट्स। अब आप ट्रायोड रीजन में आए हैं, तो VDS की वैल्यू कम होनी है या ज्यादा होनी है? देखिए, ट्रायोड रीजन इज टू द लेफ्ट ऑफ पिंच ऑफ पॉइंट, देयरफॉर VDS की वैल्यू कम होनी है, बढ़नी नहीं है। तो हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या हो गया? दिस इज 0.06 वोल्ट, नॉट 0.39 वोल्ट, ठीक है। मैं दोबारा आपको कर्व यहाँ बना के देख लेता हूँ, एक नजर फिर देख लीजिए ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ सके बेसिकली। सो दिस इज द कर्व ऑफ MOSFET, समथिंग लाइक दैट, आई एम सॉरी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, इट इज कांस्टेंट। लेट मी रब दिस आउट। इनफैक्ट मैं इसको पूरा ही रब कर देता हूँ। सो हियर वी आर, सो दिस इज द वैल्यू। और यहाँ पे आप देखिए, अब अगर यहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि ये मेरे पास सैचुरेशन रीजन है फॉर इंस्टेंस, तो अब देखिए दिस इज योर पिंच ऑफ पॉइंट। और अब चूंकि यहाँ पे आ चुके हैं, तो VDS की वैल्यू आपके पास कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। देयरफॉर ये जो ऑप्शन है VDS इक्वल्स टू 0.39 वोल्ट, दिस इज नॉट वैलिड। Okay, so far we have discussed the ID VDS characteristics. Let's discuss the ID VGS characteristic for the MOSFET in saturation region. क्योंकि जब हम ID VDS की बात करते हैं saturation region में, so we have nothing as such because ID is independent of VDS. ठीक है, the ID is simply constant as can be seen from this equation because इस equation में आपको कहीं भी VDS नजर नहीं आ रहा. So we say that ID remains constant in our saturation region. So ID किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आप देख सकते हैं ID is dependent on this term VGS because all other terms are simply constant. So the curve will look like something like this, ठीक है? And this is a parabolic curve because आपके पास एक quadratic equation आ रही है. And if you see here, this is an important discussion. You see, before VTN, when VGS is less than VT,
देयर विल बी सम आंसर, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकली बात करें, इस इक्वेशन में जाके देखें, आप VGS की वैल्यू लेट्स सपोज 0.1 पुट कर दें और VT की वैल्यू कुछ पुट करें, तो आप यू विल सी दैट देयर स्टिल विल बी सम वैल्यू ऑफ ID, बट एक्चुअली दैट इज नॉट वैलिड, ठीक है। मैथमेटिकली आपके पास आंसर जरूर आ रहा है, बट ये आपको पता रहे कि ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VT, क्योंकि इफ VGS इज लेस देन VT द चैनल इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। एंड व्हेन चैनल इज नॉट फॉर्म्ड देयर इज नो करंट। ये चीज आपको यहाँ दिखाएगी, ये देखिए, देयर इज नो करंट बिफोर VGS इज लेस देन इक्वल टू VTN। जैसे ही इसकी वैल्यू VTN से बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कर्व आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक रिलेशन बन रहा है। So I hope this curve is also clear to you. Remember, this is the curve between ID and VGS. It is not the curve between ID and VDS. Okay students, तो अभी तक हमने सिर्फ ये बात कही थी कि saturation region में हमारे पास drain current is simply constant, ठीक है। Remember student, जब हम BGT पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने IC/VC कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब हम देख रहे थे, तो हम कहते थे कि कलेक्टर करंट हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है किस रीजन के अंदर, एक्टिव के अंदर। बट हमने आगे चल के देखा था कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बल्कि एक अर्ली इफेक्ट का फिनोमिना होता है जिसकी वजह से कलेक्टर करंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन आवर एक्टिव रीजन, ठीक है, देयर इन BGT। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉसफेट की। और मॉसफेट में कहाँ पे करंट कांस्टेंट होते हैं, इन आवर सैचुरेशन रीजन। अच्छा, अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात करें, जो हम न्यूमेरिकल में करेंगे ज्यादातर, कि हम कहते हैं कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है। आप देखिए, ये कर्व आपको यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर मैं दो पॉइंट्स में आता हूँ, फॉर इंस्टेंस लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, कि अगर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और मेरे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, so let this be point 1 and let this be point 2. What is the value of current for these 2 points? It's the same. You have some delta VDS, ठीक है, this is यहाँ से यहाँ इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। So there is some delta from this point 1 to, remember this is point 2, so this is point 2, so there is some delta, there is difference. But is there any difference in current? The current is, there is no difference in current, zero change in ID. This means कि अगर आप इसकी resistance निकालें, incremental resistance, so you will see that delta RDS is given by delta VDS upon delta ID, and since drain current is zero, therefore the resistance is simply zero or infinite, ठीक है। ओके, तो लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हमारे पास होता नहीं है, दिस इज जस्ट एन आइडियलाइजेशन, एंड वी से कि ये जो हम हमारी जो अजम्पशन है कि इट रिमेन सेम, ये अजम्पशन इस बेसिस के ऊपर है कि हम कहते हैं कि हमारे पास, देखिए, पिंच ऑफ पे होता क्या है कि द चैनल इज जस्ट कनेक्टेड, चैनल की कंटिन्यूटी नहीं रहती, चैनल इज जस्ट कनेक्टेड एट द ड्रेन टर्मिनल। और हम कहते हैं कि अब इसके बाद अगर जितना आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाए, चैनल के ऊपर मजीद कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्टेड रहेगा जैसे कि पिंच ऑफ के ऊपर था। बट प्रैक्टिकली जैसे जैसे आप VDS को बढ़ाते हैं, इसका एक्चुअली इफेक्ट पड़ता है चैनल की शेप के ऊपर। चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके से फर्क पड़ता है। चैनल की जो करेक्टरिस्टिक चेंज होनी है और चैनल के ऊपर जो एक्चुअली इफेक्ट पड़ने वाला है एज यू इंक्रीज VDS, उस इफेक्ट को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दैट नीड अ डिटेल डिस्कशन। यहाँ पे मैंने आपको वो कर्व दिखाया है जो प्रैक्टिकली आपके पास होते हैं फॉर ID VDS। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि द करंट इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट, बट इन फैक्ट इट इज इंक्रीजिंग विद अ सर्टेन स्लोप। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज नॉट इन्फिनिटी एनीमोर, ठीक है। देखिए कि अगर दो पॉइंट्स अगर आप यहाँ लेंगे, सो आपके पास एक तो डेल्टा नजर आएगा आपको वोल्टेज के अंदर भी, और दूसरा आपके पास करंट के अंदर भी आपको डिफरेंस मिलेगा। सो एट दिस पॉइंट लेट दिस बी द करंट फॉर इंस्टेंस, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप जाके देखते हैं तो करंट इज दिस। सो यू सी कि आपके पास यहाँ पे एक रीजन बन रहा है जिसके अंदर करंट भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपके पास वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। सो प्रैक्टिकली देयर इज सम स्लोप एसोसिएटेड विद द कर्व, एंड दैट इज गिवन बाय द रिलेशनशिप ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। वो क्या है, इट इज गिवन बाय 1 ओवर R नॉट, ठीक है। और ये देखिए, ये इफेक्ट आपके पास क्या है, दिस इज योर अर्ली वोल्टेज, जैसे आपके पास BJT में था बिल्कुल मॉसफेट में उसी तरीके से होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस लैम्डा पैरामीटर, दिस इज रिलेटेड विद दिस अर्ली इफेक्ट, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली लैम्डा विल डिटरमाइन
कि आपके पास कितना अफेक्ट आने वाला है इस VDS का, ठीक है, प्रैक्टिकली। सो जितनी आपके पास लैम्डा की वैल्यू कम होगी, ठीक है, उतना ही आपके पास ये आइडियल सिनेरियो के करीब होगा। और जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपका स्लोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो ये डिस्कशन इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास के अंदर देखेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे व्यू और ड्राइव को बढ़ा रहे हैं बेसिकली, तो आपके पास ये कर्व डिफरेंट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये अफेक्ट कौन से, क्या व्यू और ड्राइव कैसे बढ़ेगा, बेसिकली आप VGS को बढ़ा रहे हैं, तो पहले कर्व ये था, फिर ये हो गया, और फिर आपके पास ये कर्व हो गया। और अगर आप सिर्फ VDS का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियली इट इज लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट दिस इज योर कर्व। So we say कि practically हमारे पास there is some finite output resistance in saturation. It's not infinite. That's it for today, students. Thank you so much for being with me. Inshallah, I meet you in our next online lecture. Should you have any queries, feel free to contact me via email. Until then, it's Muhammad Uwais signing off. Allah Hafiz.